Hello friends, welcome back to my channel Let's Crack UPSC. Hope all of your preparation going well, and I hope you people are following many of the instruction I have given in many of the videos specially. Apart from that, the main thing is we have already are having a particular Odia language related playlist. Please go and check that out. It will be helpful for your ASO exam also. Not only that, we have wonderfully created many of the playlists which can be helpful for OS examination preparation. So if you are new to our channel, do subscribe our channel. Today's video is going to be very much informative, and it will be, say for example, if you are preparing for ASO examination, then polity questions are also there. So for that, this particular video is going to be very much informative. Especially this video will be on 42nd amendment, because it is a so comprehensive, you can say, the amendment. There can be direct question can be asked from this. Before I start today's discussion, आज पर्यंत जेतिकी सब ऑर्डर थिला माने अप टू सैटरडे सबू पार्सल हेई सारची जो माने ऑर्डर देइथिले अप टू सैटरडे स्पेशली, एंड आफ्टर 12 o'clock जो माने भी ऑर्डर करिसंती, आफ्टर सैटरडे 12 o'clock जो माने भी ऑर्डर करिसंती सेमानकर पार्सल हबो मंडे जनरली आमे पार्सल करिवु माने काली आमे पार्सल करिवु जो माने मंडे सैटरडे 12 o'clock पर पेमेंट करिसंती। जो माने ऑर्डर देइथिले सेमानकर काली ही अप टू 10 o'clock जो माने ऑर्डर देइथिले काली ही आमे पार्सल करी सेमानकु ट्रैकिंग आईडी देइ सरचु। And for our new YouTube subscribers, we have published our book, and many of you are asking, even those people who have already received the book, they are also asking, sir, how it can be helpful for ASO examination. I would tell all of you that ASO is also having general awareness paper. General awareness paper गोटे अच्छी ASO examination रे 100 questions. से 100 क्वेश्चन रो ब्रेकडाउन कोन आपण जानते कि पॉलिटी आसे, ज्योग्राफी आसे, देन हिस्ट्री आसे, एनवायरनमेंट आसे, साइंस एंड टेक आसे, देन इकोनॉमिक्स आसे और करंट अफेयर आसे। एंड इन आवर टेस्ट सीरीज बुक यू विल बी गेटिंग ऑल ऑफ दिस। 30 टा सेट दिया है विथ डिस्क्रिप्टिव आंसर। द मेन फीचर ऑफ आवर टेस्ट सीरीज इज डिस्क्रिप्टिव आंसर and error free test. We have put in that kind of an effort in order to provide you the best possible, you can say, test series without error. So it will be helpful in your quick revision of concept and information. किछि गोटे important concept अछि आउ किछि important information अछि जोडा आपनकर हमर descriptive जो आंसर फॉर्मेट रे दिया हिची आपण पढी रिवाइज करि परिबे। सब टेस्ट रो दिया हिची। Not only that, we have also provided current affair at the back of the sets. 7 extra current affair sets are also given. Not only that, including that current affair, we have also given the, you can say, descriptive answer of this particular current affairs also. आपण मानकु current affair रो भी descriptive format रे आंसर दिया हिची जोटा कि आपण मानकु बहुत हेल्पफुल करिवो। If you have not ordered, then do order. That how to order is there in the description. केमिति ऑर्डर करिवे सेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिखा हिची। तो आपण पिन कोड ठीक से मेंशन करंतु। बहुत गुडी पिला अछंती जो माने 2 दिन रे भी पाइचंती। ओडिसा भितरे 2 दिन रु 5 दिन भितरे जनरली पहुंच जाए। तो people have got it. And for all our new YouTube subscribers, there is a good news for Cuttack and Bhubaneswar students who were willing to purchase our book. This particular week I will be getting the stock, the last stock, and on Tuesday माने मंगलवार दिन आमे भुवनेश्वर रे क्वांटिटी अवेलेबल हबो। डायरेक्टली आपण कांटेक्ट करि परिबे 9937626493। you can directly purchase the book from me on Tuesday. आपण Tuesday रे मते डायरेक्टली पेमेंट दे परचेस करि परिबे। मोस्ट प्रोबेबली MICM मधुसूदन इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, CRP मधुसूदन इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी रे
आपन को आसिकी डायरेक्टली परचेस करने को पड़ो। बहुत गुड़िए मेसेज आ कॉल आछि सर आपनकर इंस्टीट्यूट कोडी आमे बहीटा परचेस करने को चाहूँ, तो भुवनेश्वर जो माने अछंती से माने डायरेक्टली आसी नहीं पारिबे। एंड वी विल आल्सो बी गिविंग इट इन कटक। कटक रे भी आफ्टरनून वी विल बी ट्राइंग। जदि आमे मंडे जदि हमू स्टॉक मिल जाए तो आमे कटक रे भी आफ्टरनून सेशन रे आमे यू कैन डायरेक्टली टेक इट फ्रॉम मी। डू वॉच आउट आवर कम्युनिटी सेक्शन पोस्ट। I will be putting the exact place and location and the time where you can get the book directly from me. Apart from that, certain bookstores we will be also distributing to certain bookstore. They will be available. They will be keeping our book. You can directly purchase from them also. So I hope that things are clear to all of you. And for all of your information, we have already started the ASO crash course. Today we will be posting the full length test. Our important information to our ASO crash course aspirant, we will be putting the full length test number 2. Be ready for it. And if you have not joined our ASO specific crash course, do join. The how to join is also there in the description. So let's start today's discussion regarding the 42nd amendment. 42nd amendment of Indian Constitution. It was the most comprehensive, you can say, the amendment done ever. It was done during the emergency time. Emergency time it was done, and it was done by Indira Gandhi government. Indira Gandhi government रे 42nd amendment ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଟାକୁ mini constitution भी କୁହାଯାଏ। And there are many of the instances direct questions are asked from this particular thing. So it is very important from ASO as well as OS perspective. So it is very important. 42nd amendment रे कौन कि emergency स्पेशली कौन है emergency 352 आर्टिकल रे, आर्टिकल नंबर 352 रे war, external aggression, एबरो जो टाइम रे अछि armed rebellion, before armed rebellion सेठारे मेंशन थिला internal disturbance, सेठारे कौन मेंशन थिला internal disturbance. Can you imagine the word internal disturbance is used in order to impose the emergency on India. Same time रे कौन हला इंदिरा गांधी जो स्पेशली आफ्टर 71 war with Pakistan, and Pakistan was broken into two by इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी जो गवर्नमेंट थिला सेटा कौन पाकिस्तान को यू कैन से स्पेशली आपण माने जानथिबे बिपिन चंद्रा रो गोटे इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस गोटे मोटा बही अच्छी सेठारे बहुत बढ़िया मेंशन अच्छी स्टोरी फॉर्मेट रे. एंड इफ यू विल रीड दैट इट्स ए वेरी वंडरफुल बुक. I know many of you might be preparing for IAS also. So if you will go through that, it will enlighten you regarding the various situation, various historical things. So it is very wonderful book. तो से बिपिन चंद्र रे अपन देखिबे आउ गोटे बही पढ़थिली Soldiering with Dignity. It was written by Lieutenant General Dipender Singh. Who was Lieutenant General Dipender Singh? He was the military assistant to Field Marshal Manekshaw. 1971 war रे Manekshaw जो थिले से थिले कौन थिले हमरो you can say the army chief. Army chief से टाइम रे थिले, से टाइम रे कौन हला कि मार्च मास रे 1971 मार्च मासरे कौन हला कि गोटे सिचुएशन क्रिएट हला कि all three services chiefs were called by the इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी कौन करले कि मार्च एप्रिल मासरे सम जो तीनटा सर्विस चीफ थिले सेमानंकु डाकी गोटे मीटिंग करले कि मते ईस्ट पाकिस्तान रे जो सिचुएशन अछि सेति पय वार करबाकू पड़िबो. एंड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट द फील्ड मार्शल मानेकशॉ sword spunk. And he said, no, Madam Prime Minister, I will not be doing this particular war. Straightforward. Can you imagine the kind of a courage he was having? Sam Manekshaw was you can say a wonderful figure for even all the army generals. You can say the kind of a courage he was having, because it is very easy for a government to change the general also. Government can pass a particular order and then change the general. If you are not following the orders of the government, then automatically it is very easy
to pass a particular order, and you can say you will be shunted out. Many generals are also being shunted out before their due tenure. So it is very important. He said, Madam Prime Minister, I will not be going for the war because maximum of our forces are totally, you can say, scattered because of your decision, because of your, some people are doing our rescue operation in Bengal flood, Assam flood, and some people are involved in election duty. For this reason also, I will not be able to organize the war. Give me some time, 8 to 10 months, 8 to 9 months. I will be get my forces prepared. Then only we can go for a war. He asked for time, and thankfully, Prime Minister Indira Gandhi said, "Okay, I am giving you time. You please prepare." At that particular time, India was following a non-aligned movement. But what happened? Indira Gandhi knew that if India attacks Pakistan, Pakistan will approach the United Nations and United States. United States will come in the, you can say, the rescue of Pakistan. For that reason only, Indira Gandhi in August went to Soviet Union. Indira Gandhi कौन कला कि Soviet Union गला और सेठी कौन कला Treaty of Friendship and Cooperation साइन कला. जदि कोटी थर्ड पार्टी इंडिया को अटैक करे तो सोवियत यूनियन इंडिया को सपोर्ट करिवो. टिल 1971 अगस्त मास से पर्यंत इंडिया टोटली नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट रे जाउथुला. से पर्यंत कौन थिला ना इंडिया अमेरिका को टोटली सपोर्ट करथुला, ना इंडिया सोवियत यूनियन को सपोर्ट करथुला. किंतु 1971 रे इंदिरा गांधी टुक ए पर्टिकुलर स्टेप. In that step, what happened? India's polity went closer to Soviet Union. Soviet Union सहित क्लोज ହେଇକି ସେଠାରେ ସାଇନ୍ କଲା. ସେଠାରେ ସାଇନ୍ କରିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା? 19 ଅଗଷ୍ଟ ରେ ସାଇନ୍ କଲା ଆଉ ଆଟାକ୍ ହେଲା, you can say ନଭେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ରେ ଆଟାକ୍ ହେଲା. ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଟାକ୍ କଲା ଇଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନ କୁ, जनरली इंडिया अटैक करेनी, इट वाज स्टार्टेड बाय Pakistan, you can say, try to infiltrate from the western side as well as from the eastern side. से टाइम रे कौन हला? इंडिया को रिप्लाई देबा पड़ला. वेस्टर्न साइड रे कौन हला? वेस्टर्न जो आपण देखिथिबे बॉर्डर पिक्चर, सेठारे कौन पाकिस्तान एयरफोर्स आसी बॉम्बार्डमेंट कला वेरियस सेक्टर्स ऑफ इंडिया. सेठारे बॉम्बार्डमेंट करिया फल रे इंडिया को रिप्लाई दे वॉर करिया पड़ला. फॉर दैट इंडिया डिड वन थिंग कि इंडिया जो होची ईस्ट पाकिस्तान को कट ऑफ कर देला. से टाइम रे हमरो जो एयरक्राफ्ट कैरियर थिला INS विक्रांत, सेटा कोन गला बे ऑफ बंगाल रे टोटली पाकिस्तान रो जति कि सब नेवी रो जो सप्लाई चेन थिला सेटा को टोटली कट ऑफ कर देला. एई सिचुएशन देखि कि अमेरिका कोन गला, अमेरिका पाकिस्तान को हेल्प पठाया पई तारो 7th फ्लीट को इंडिया को बे ऑफ बंगाल को पठैला. से टाइम रे कोन होला? सोवियत यूनियन अमेरिका को कहला कि नो, यू कैन नॉट डू दैट. व्हाट एवर द थिंग्स आर हैपनिंग इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दे शुड बी फाइटिंग इन ए लिमिटेड वॉर. वी शुडंट बी इन्वॉल्व बिकॉज ऑफ द अगस्त मास रे जो साइन हितिला. आपण मु जो कहली कि अगस्त मास रे गोटे साइन हितिला ट्रीटी. तापर कोन होला? सिचुएशन एमिति ହେଲା फल रे कोन होला? पाकिस्तान जो सोवियत यूनियन अछि, सोवियत यूनियन ताकू प्रेशर पकेला कागु अमेरिका को टू स्टे आउट ऑफ दिस इंडो पाक वॉर. एंड फाइनली सोवियत यूनियन रो जति की थिला जो यू कैन से वॉर यू कैन से शिप, दे वेंट आफ्टर द एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ यूएस नेवी रो एयरक्राफ्ट कैरियर को फॉलो करिया को स्टार्ट करले. सेही कारण जोगु से माने रिटर्न कर देले. माने सोवियत यूनियन आउ अमेरिका भितरे कॉम्प्रोमाइज हला कि से माने इन्वॉल्व हेबेनी. For that reason also India took a victory, and finally 16 December 1971 you can say the East Pakistan surrender हेतिला. गोटे आपण गोटे मेमोरेबल गोटे फोटो पिक्चर देखिथिबे कि ईस्ट पाकिस्तान रो जनरल नियाजी आई थिंक ही साइंड द यू कैन से सरेंडर. तो मु ए स्टोरी को यार मेन उद्देश्य थिला कि जो ईस्ट पाकिस्तान अलग हला तापर कोन हला कि गोटे इलेक्शन थिला. एंड इन दैट इलेक्शन इंदिरा गांधी
got a thumping majority, 352 seats. Can you imagine 352 seats Indira Gandhi won in Lok Sabha election? सेटारे कोन ब्रुटल मेजोरिटी रे इंदिरा गांधी पळि आसिला. सेही ब्रुटल मेजोरिटी जोगु इंदिरा गांधी की भरोसा ला कि मु किछि भी करि परिबि. And for that reason only it was very terrible situation. Many democratic institutions were, you can say, were facing the problem especially. So ei सब situation रे emergency pass हला. Sorry, emergency केबे pass हला? That is also on 25 June 1975. 25 June 1975 रात्रि रे. Can you imagine there was not a cabinet, you can say the cabinet ro kichi semane without taking any kind of a council of minister. See, democracy रे कोन हुए कि council of minister गोटे decision नियंती कि emergency लगेयार अछि तापर जाईगी president को official गोटे letter रे recommend हुए कि आपण 352 article जे आपण ये कौन करिवे कि नेशनल इमरजेंसी लगेबे. किंतु 8A वाला जो ये हेतिला सेथिरे नॉर्मल पेपर रे इंदिरा गांधी recommended and automatically Fakhruddin Ali Ahmad, he was the president that time, and he once, there was a particular quote of Fakhruddin Ali Ahmad. He once said, if Indira Gandhi tells me to sweep her floor, I will do that also. That kind of a president he was, and he signed it blindly without asking for any kind of a whether cabinet has approved this or not. And finally 25 June 1975 रे national emergency लागिला for internal disturbance. आपण बुझिबे कि एबर जो 352 आर्टिकल अछि सेटारे मेंशन अछि armed rebellion, but previously there was mention of internal disturbance. से चेंज टा केबे आसिला 44th amendment रे. 44th amendment जेतलो जनता पार्टी आसिला से इंटरनल डिस्टर्बेंस वाला जो वर्ड टागु 352 आर्टिकल रो सेटा को रिप्लेस कर दला आर्म्ड रेबेलियन. एबर जो सिचुएशन रे जदी आर्म्ड रेबेलियन हुए ताहाले ही आपण नेशनल इमरजेंसी लगेई पारिबे. सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सही इमरजेंसी सिचुएशन रे सरदार सोन सिंह कमिटी गोटे सेटअप हला. सरदार सोन सिंह कमिटी कौन कहला कि बहुत किसी गोटे रेकमेंडेशन देथिले से माने इवन सरदार सोन सिंह कमिटी से माने कौन करथिले से माने कहिथिले कि इवन इन गिविंग इनकम टैक्स को भी गोटे फंडामेंटल ड्यूटी रे पक्का जाऊ, किंतु पार्लियामेंट सेटा को एक्सेप्ट करलानी. एंड फाइनली जो हमर पार्ट 4A रे आर्टिकल 51A रे जो हमर फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज जो मेंशन अच्छी सेटारे 10टा ही फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि 42nd अमेंडमेंट रे ऐड हैला. सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर. एंड द बैकग्राउंड यू कैन सी इवन द इमरजेंसी बैकग्राउंड गोटे कौन हला गोटे जजमेंट आसिला सुप्रीम कोर्ट रो जजमेंट आस्थिला कि इंदिरा गांधी विरुद्ध रे रायबरेली रो जो इंदिरा गांधी रो जो इलेक्शन हेतिला सेटा गोटे फर्जी बोली गोटे इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट देला. And not only that, unemployment was on the record high, just like at this particular juncture. Unemployment is at record high, and there was massive protest in Bihar as well as Gujarat. Gujarat और Bihar रे कौन थिला कि massive protest होतुला गवर्नमेंट विरोध रे. से टाइम रे जेपी जयप्रकाश नारायण कौन कहले कि गांधी मैदान पटना रो जो गांधी मैदान रे सेठारो कौन कहले संपूर्ण क्रांति रो गोटे नारा देइथिले. आउ सेही संपूर्ण नारा जोगु से टाइम रे बीजेपी नथिला से टाइम रे कौन थिला भारतीय जनसंघ अटल बिहारी वाजपेयी देन LK आडवाणी एमाने भारतीय जनसंघ रे थिले. मुलायम सिंह यादव भी गोटे पार्टी रे इन्वॉल्व थिले. नॉट ओनली दैट द जॉर्ज फर्नांडिस ही वाज आल्सो देयर. ये समस्त को इमरजेंसी लागू सेम टाइम से उठेगी राताराती जेल रे. माने यू कैन से द काइंड ऑफ ए वायोलेशन ऑफ डेमोक्रेसी, यू कैन से डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ ए ऑपोजिशन. आज माने सिचुएशन एमती हवा दरकार, बहुत डेंजरस सिचुएशन. जदि जड़े ऑल ऑफ ए सडन गोटे इलेक्टेड एमपी एंड प्राइम मिनिस्टर जदि यही सब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन को वायलेट करे तो सिचुएशन बहुत खराब हो.
बहुत माने से टाइम रे कोन जो जति सब प्रेस पर्सन थिले से माने प्रोटेस्ट रे कोन करले से माने ब्लैंक जो एडिटोरियल पेज अछि ताको ब्लैंक छाडिया को स्टार्ट करले द गवर्नमेंट कोन कला ता ऊपर भी कटकणा लगेला तमे ब्लैंक छाडिबा को हबनी कहीं ब्लैंक छाड़ा अर्थ हूँ आम प्रोटेस्ट करूँ गवर्नमेंट रो जो डिसीजन इमरजेंसी लागू करवा राताराति बहुत गुड़िए न्यूज चैनल सॉरी न्यूज से टाइम रे तो सोशल मीडिया आउ एते इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी सेते हाइप नथिला किंतु ओनली यू कैन से द प्रिंट मीडिया रो लाइट भी कटा हेला माने से माने प्रिंट न करि परिबे जेमे तो सेही सिचुएशन रे से माने बहुत प्रोटेस्ट करी इवन ब्लैंक पेज छाड़िया को स्टार्ट करले ब्लैंक पेज भी छाड़िबा को हबनी बोली गवर्नमेंट ताकू कहिला तो इमिडी सिचुएशन क्रिएट हेतिला इन ड्यूरिंग द इमरजेंसी आई होप द स्टोरी यू लाइक देन आफ्टर इट इज कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट कोन गोटे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन गेव इफेक्ट टू द रिकमेंडेशन ऑफ सोन सिंह कमिटी मु जोडा कहली कि सोन सिंह कमिटी रो जति सब रिकमेंडेशन थिला एटा सोन सिंह कमिटी रो रिकमेंडेशन जोगु एटा इंक्लूड हला added 3 words socially secular and integrity in the preamble जो आज जो हमर ये आपण देखिबे preamble इनिशियल जो preamble थिला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्पेशली सोशलिस्ट सेकुलर यूनिटी इंटेग्रिटी ए जो तीनटा वर्ड थिला इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से माने कोन थिले गोटे मेंशन करथिले ड्यूरिंग द इनिशियल फेज बट सोशलिस्ट सेकुलर एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन ए सब जो वर्ड हला सेटा 42nd रे ऐड हेतिला ताकू छाडी एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज बाय द न्यू पार्ट 4A एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट 42nd यू कैन से अमेंडमेंट रे कोन हला पार्ट 4A ऐड हला आउ जो मु कहली कि 10टा फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हला then after what happened president is bound by the advice of the cabinet माने प्रेसिडेंट एबर जो सिचुएशन अछि 42nd अमेंडमेंट रे 44th अमेंडमेंट रे ए जिंसटा चेंज हला प्रेसिडेंट कैन यू कैन से द सेंड द एडवाइस टू द कैबिनेट अगेन फॉर रिकंसीडरेशन 42nd अमेंडमेंट रे एडा को चेंज करा हला कि प्रेसिडेंट कोन करि परिबे थरे रिकंसीडरेशन पई कैबिनेट को पठै परिबे किंतु लास्ट टाइम कोन माने 42nd अमेंडमेंट रे कोन थिला कि प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर then froze Lok Sabha and Assembly seat for till 2001 सेठारे कोन हला कि 2001 पर्यंत 1971 रो जो सेंसस हेतिला तारो पॉपुलेशन को बेस करिकि 2001 पर्यंत लोकसभा रो सीट लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रो सीट को फ्रीज करा हिची देन दिस इज अबाउट दिस प्रोवाइडेड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एडेड पार्ट 14A रे कोन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यूज हला सेटर कोन यदि एडमिनिस्ट्रेशन रो किछि प्रॉब्लम हुए दे कैन अप्रोच द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आर्टिकल 3 लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वेरी इंपोर्टेंट देन मेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बियॉन्ड जुडिशियल स्क्रूटिनी एटारे कोन हला कि जो कॉन्स्टिट्यूट बियॉन्ड द जुडिशियल स्क्रूटिनी एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट अमेंडमेंट माने लेखि लगी कि इट इज मेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बियॉन्ड जुडिशियल स्क्रूटिनी एपर जो सिचुएशन अछि इवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर आल्सो अंडर जुडिशियल स्क्रूटिनी आपण जानिथिबे कि एनजीएसी एक्ट जो पार्लियामेंट पास करथिला सेटा को सुप्रीम कोर्ट ट्रैक डाउन करिकि एपर जो सिचुएशन अछि कॉलेजियम सिस्टम ही माने चूज करिवो कि नेक्स्ट वेरियस जजेस अपॉइंटमेंट को कोन कॉलेजियम सिस्टम ही चूज करिवो किंतु जो 42nd अमेंडमेंट रे कोन रखिदिले कि एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नॉट बी यू कैन से द रिव्यूड बाय एनी काइंड ऑफ ए जुडिशियरी देन कटेल जुडिशियल रिव्यू पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट माने जुडिशियल रिव्यू पावर टाकू कटेल करथिला जोटा कि आपण जानथिबे 1973 रे केशवानंद भारती जजमेंट रे आसीथिला कि you cannot change the basic structure कोन कि जुडिशियल रिव्यू दरकार काहेकि चेक्स एंड बैलेंस दरकार एमिति नै लेजिस्लेटिव ऑल पावरफुल हे जिवो से तो बहुत किछि चेंज कर दो तो लोकसभा असेंबली टेन्योर रेज फ्रॉम 5 to 6 years से टाइम रे कोन हला लोकसभा
टेन्योर भी चेंज कराइला 5 to 6 years. Can you imagine 5 to 6 years कराला किंतु 44th amendment है सेटा को आउट डाउन टू 5 years कराला. Then DPSP implementation cannot be declared invalid by court on violation of FRs. माने DPSP की जदि गवर्नमेंट किछि इंप्लीमेंट करिया पय किछि लॉ आनंती तो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करूची एई पर्टिकुलर लॉ बोली माने कोर्ट्स आ हाई कोर्ट से माने इनवैलिड करि परिबे नहीं से जिंचो पास कराला 42nd रे. Then empowered parliament to make laws to deal with the anti-national activity. एठारे कोन 42nd amendment रे empowered the parliament to pass any kind of a anti-national activity पय किछि भी लॉ पास करि परिबे. ताकू छाडी कोन हला 3 new DPSPs added 39A, 43A and 48A. What is 39A? Free legal aid. 43A workers participation in management. Then 48A the protection of forest and wildlife and animals. जति कि सब protection of forest and wildlife animals ए सब जिंसो मेंशन अछि 48A रे. Then proclamation of national emergency in a part of territory of India facilitated. माने किछि पार्ट ऑफ इंडिया रे भी हमर जो आपण ये करि परिबे कोन जे दिस इमरजेंसी लगै परिबे सेटा पावर दिया हला पार्लियामेंट को. Then president's rule duration extended from 6 months to 1 year. Initially कौन थिला एबे चेंज करा ही अगेन प्रेसिडेंट रूल अंडर 356 सेटा को कोन 6 months रो 1 year duration करा हला. Then center to deploy its armed forces in any state to deal with the grave situation. जदी एबर कोन जो सिचुएशन अछि कि एटा ठीक अछि माने सेंटर जदी किछि ग्रेव सिचुएशन क्रिएट हला तो सेंटर आर्म फोर्सेस स्पेशली द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को डिप्लॉय करि परिबो. ताकू छाडी 5 सब्जेक्ट शिफ्टेड फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट. मु गोटे पॉलिटी क्लास रे कहितिले पांचटा जो सब्जेक्ट अछि सेटा को स्पेशली स्टेट लिस्ट टू शिफ्ट करी कंकरेंट लिस्ट रे पकाला. मु कोन कहितिली गोटे एजुकेशन देन फॉरेस्ट देन वेट्स एंड मेजर्स देन मु कोन कहितिली ये प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल. अपार्ट फ्रॉम दैट 5 इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक्सेप्ट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. एठा जो पांचटा जो आइटम अछि सेटा को शिफ्ट कराला फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट. स्टेट लिस्ट रे सब्जेक्ट केतरा थिला 66 टा थिला सेटा ही गला 61 आउ कंकरेंट लिस्ट रे सब्जेक्ट थिला 47 सेटा ही गला 52. देन quorum in parliament and state removed. Quorum, what is quorum? Quorum is you can say 1/10 of the total member of the house. जदि सेमाने प्रेजेंट थिबे ताहाले ही the proceedings of the parliament or state legislature can be taking place. Otherwise the presiding officer can you can say postpone the sitting. Then provided for the creation of all India judicial service. एटा कोन कला कि provided all India judicial service provide करिया पई कला. Shorten the procedure of disciplinary action by taking away the right of a civil servant. एठारे भी एटा भी remove करा हला in this 44th amendment कि civil servant रो तो representation करि परिबो नाही सेटा थिला. So I hope the 42nd amendment and the story which I told you I know the video is got long but it was a very important informative video. If you think that this particular video is informative, do like the video, do share with your friends whosoever are preparing for OS as well as ASO examination. Thank you very much. Happy learning.